Hello students. So students, as you know that we are completing chapter number 6, that is triangle of class 10th maths. Okay. So students, in the last part of the video we have started exercise 6.3. Okay, and up to question number 4 we had discussed, and question number 5 and 6 I told you to solve as a homework. So I thought I should tell you question number 6 because question number 5 is very easy. Okay, so today I am going to start with question number 6. Okay, so see, I hope that you all having your maths NCERT book. So I'm not going to write the question, I'm just reading it. Okay, so see what is the question. In figure 6.37, if triangle ABE is congruent to triangle ACD, then show that triangle ADE is similar to triangle ABC. Okay, so student, the figure of this question is 6.37, and in this figure what is given? This is the figure, student. It is triangle ABC. Okay, and it is DE, and join D to C and D to E. Okay, so this is the diagram. So what is given, student? In the question it is given that triangle ABE is congruent to triangle ACD. Okay, so we will write what is given. So given is that triangle ABE is congruent to triangle ACD. Okay, ACD. And what we have to prove, student? So we have to prove triangle ADE is similar to triangle ABC. I think that all of you know the symbol of similarity. Okay, so triangle ABE is congruent to triangle ACD is given, and we have to prove that triangle ADE is similar to triangle ABC. So we will start from the given thing. What is given, student? What is given? Given is that it is given a triangle ABE is congruent to triangle ACD. Now see these two triangles in the figure. What is triangle ABE? Triangle ABE. Okay, and triangle ACD is ACD. So if these two triangles are similar, so by CPCT, corresponding parts of congruent triangle, we can say now AB will be equal to what? AC. AB किसके बराबर होगा? AC के. Similarly, BE will be equal to CD and AE will be equal to AD. ठीक है? By CPCT, because if two triangles are similar, congruent, then their corresponding parts are equal. So by CPCT, their corresponding sides are equal and their corresponding angle will also equal. So ABE and ACD. So ABE and ACD, it means in both the two triangles, angle A is common. So angle A is equal to angle A. Okay, angle A equal to angle A because in these two triangles, angle A is common. Okay. Similarly, angle ABE. Angle ABE is equal to angle ACD, and one more angle will be equal, that is angle AEB is equal to angle ADC. Okay, AEB and ADC. By CPCT we have written all the corresponding parts are equal. So now which two triangle we need to prove similar? We need to prove similar triangle ADE and triangle ABC. These two triangles we need to prove similar. Okay, so if we want to prove these two triangles similar, so first we will write like this: triangle ADE and triangle ABC. Okay, now tell me, student, one thing. ADE and ABC. Okay, so what is common between in these two triangle? So see, student, AB was equal to AC
एंड AE वॉज इक्वल टू AD, ठीक है। AB AC के बराबर था और AE AD के बराबर था। तो एक बात बताओ मुझे, सी AB वॉज इक्वल टू AC, ठीक है, एंड AE इज इक्वल टू AD, ठीक है। लिख सकते हैं ना हम लोग। सपोज स्टूडेंट व्हाट आई हैव डन, इसको मैं AB इज इक्वल टू AC लिख दिया और इसको मैं क्या लिख दिया, AD अपॉन AE, AD इक्वल टू AC, ओके। ऐसे में लिख सकते हैं AB और AC इक्वल है और AD और AE इक्वल है, क्योंकि अगर AE इज इक्वल टू AD होगा तो AD इज ऑल्सो इक्वल टू AE, बस मैंने इंटरचेंज कर दिया। अगर A इक्वल टू B है तो B इज ऑल्सो इक्वल टू A। अब क्या करूं, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं स्टूडेंट, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, ये आ जाएगा AB बाई AD इज इक्वल टू AC बाई AE आएगा। मैंने क्या किया, इसको और इसको डिवाइड कर दिया इन दोनों को, तो क्या आएगा, AB बाई AD एंड AC बाई AE। ये मैंने किया क्यों, अभी मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, लिख सकते हैं। अच्छा, अब जिन दो ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है स्टूडेंट, उनको देखो। एक ट्राइंगल है ADE और एक ट्राइंगल है ABC। तो अब ध्यान दो, क्या इन दोनों ट्राइंगल में AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC? क्या इन दोनों ट्राइंगल में ये चीजें हैं? हाँ, ये दोनों चीजें हैं, क्योंकि अभी हमने आपको बताया है, दिखा के देखो। AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC, ओके। और ये कैसे आया, ये उन चीजों से आया जो गिवन था। गिवन हमारा क्या था कि ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। तो अगर गिवन है तो CPCD से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो AB AC के बराबर है, BE CD के बराबर है और AE AD के बराबर है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन दोनों को साथ में लिया। इन दोनों को साथ में इसलिए लिया क्योंकि हमें पता है कि किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर कैसे प्रूव करते हैं। तो 3 क्राइटेरिया है हमारे पास, एक है AA, एक है SAS और एक है SSS। AA एंगल पता नहीं है दोनों का, SSS साइड्स पता नहीं है। तो SAS को कैसे पता किया हम लोगों ने, SAS को हमने ऐसे पता किया कि AB और AC को मैंने इस साइड में लिखा ऐसे, और AE और AD को साथ में हमने लिखा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, AB को AC रहने दिया, AB इक्वल टू AC, और इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। इसको मैंने क्या लिखा, AD इक्वल टू AE। अब क्या कर दिया, इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया। तो इन दोनों को जब डिवाइड किया तो क्या आया, AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE, ओके। अच्छा, अब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल, क्योंकि एक का रेसिप्रोकल करोगे तो दूसरे का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE बाई AC। तो ये आप ऐसे साइड में लिख लेना, ठीक है। तो देखो AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC, ये आ गया। अच्छा, अब देखो, और दोनों ट्राइंगल में स्टूडेंट, ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC, इन दोनों में एंगल A इज इक्वल टू एंगल A है। इन दोनों ट्राइंगल में, ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC में एंगल A क्या है, कॉमन। तो अब बता मुझे, ये दोनों ट्राइंगल किस क्राइटेरिया से सिमिलर होंगे, ये दोनों ट्राइंगल किस क्राइटेरिया से सिमिलर होंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल SAS से सिमिलर होंगे। एंड व्हाट वाज द SAS? इफ one angle of a triangle is equal to the one angle of the another triangle and the ratio of the sides which including the angle are proportional। अब देखो, इस एंगल को, एंगल A को कौन कौन सी साइड बना रही थी, इस ट्रायंगल में AD और इस ट्रायंगल में AE, ठीक है। सिमिलरली इसी एंगल A को कौन सी साइड बना रही थी, AB और AC। और SAS क्या होता है कि वो एंगल और जो भी साइड इस एंगल को बना रही है उनका रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनल, मतलब कि क्या होगा, इक्वल। तो मतलब कि AD और AB का जो रेशियो होगा वो AE और AC के रेशियो क्या होगा, बराबर, जो कि बराबर आया है। तो ये हो गया हमारा S और ये हो गया A। तो ये हो जाएगा हमारा बाई SAS ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। यहां मैं नीचे लिख दे रहा हूं, ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, प्रूव्ड। So student, like this you can solve question number 6. In the question number 6 nothing was different, okay, only one criteria was given, that is triangle ABE was
कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी, तो उससे हमने सीपीसीटी के थ्रू कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल कर लिया, और जो भी पार्ट्स हमें मिले हमने देखा कि किन दो साइड का रेशियो इक्वल आ सकता है और उनके बीच का एंगल इक्वल आ सकता है। तो मैंने एबी और एसी को साथ में लिया और एई और एडी को। क्यों मैंने इन्हीं दोनों को साथ में लिया, क्यों मैंने इन दोनों को साथ में नहीं लिया? क्योंकि इन्हीं दोनों में ए वाला पॉइंट एंगल कॉमन था, इन दोनों रेशियो में हमें ए वाला एंगल कॉमन मिलता है, इसीलिए मैंने इन दोनों साइड और इन दोनों साइड को लिया। और साइड में मैंने ये दिखा दिया कि इनके जो एंगल ए बना रही है साइड्स, उनके साइड्स का जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल। मींस द साइड्स इंक्लूडिंग दैट एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो इस एंगल को बनाने के लिए दोनों ट्रायंगल की कौन कौन सी साइड लग रही है, इसका एडी तो बड़े वाले का एबी और इसका एई तो बड़े वाले का एसी। तो उन दोनों का रेशियो मैंने दिखा दिया क्या आ रहा है, इक्वल। और कैसे आया, एबी और एसी को साथ में लिया, एई और एडी को साथ में लिया और इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया। तो जब डिवाइड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट के साथ डिवाइड होगा, राइट हैंड साइड राइट के साथ। सो एबी बाई एडी विल कम इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड एसी बाई एई विल कम इन द राइट हैंड साइड। अब इसी को मैंने क्या कर दिया, उल्टा लिख दिया। तो एडी बाई एबी इज इक्वल टू एई बाई एसी। अब मैंने ये दोनों ट्रायंगल लिया, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ए को बनाने वाली साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल। दैट इज एडी बाई एबी इज इक्वल टू एई बाई एसी एंड एंगल ए is common in both the triangle. So by SAS, these two triangle will be similar. Okay. So I hope it is clear to you. So after that, student, we will start question number 7. Okay. So please note down it. Now student, our next question is question number 7. So see, what is the question number 7? I have drawn the figure of question number 7. Okay. So what is the question? In figure, altitude AD and CE. Altitude AD and CE of a triangle ABC intersect each other at point O. Okay. So show that first part, triangle AEP is similar to triangle CDP. Second part, triangle ABD is similar to triangle CBE. Third part, triangle AEP is similar to triangle ADB. And fourth part, triangle PDC is similar to triangle BEC. Okay. So we will start from first part. So what is the first part, student? First part is triangle AEP. AEP is similar to triangle CDP. Okay. तो एक क्वेश्चन है कि ट्रायंगल एबीसी है जिसमें दो एल्टीट्यूड है। कौन कौन से एल्टीट्यूड, एडी एंड सीई, और दोनों पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पहले पार्ट को हमको ये प्रूव करना है, दैट इज ट्रायंगल एईपी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीडीपी। तो जिसको प्रूव करना है वो दो ट्रायंगल आप ले लो, ठीक है। जिसको भी प्रूव करना है आप वो दोनों ट्रायंगल ले लो। जब आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते थे तो क्या लिखते थे, दो ट्रायंगल को लिखते थे और बीच में एंड लिखते थे। तो हमें इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है ना। अब ये सिमिलर है नहीं, तो पहले आप क्या लिखोगे, पहले लिखोगे ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल एसीडीपी, ठीक है। तो जैसे ही आपने दो ट्रायंगल का नाम लिखा, आपने दो ट्रायंगल को फिगर में देखा कौन कौन से ट्रायंगल है। तो इट इज ट्रायंगल एईपी एंड इट इज ट्रायंगल सीडीपी। तो हमको इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो सिमिलर हम प्रूव करने के लिए हमारे पास तीन क्राइटेरिया थे। पहला था डबल ए, दूसरा था SAS और तीसरा था ट्रिपल S, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि कौन सा मेथड अप्लाई करें, कौन सा क्राइटेरिया लगाएं। तो देखो ट्रिपल S के लिए हमको साइड्स का रेशियो पता होना चाहिए, SAS के लिए भी हमको दो साइड्स का रेशियो और इंक्लूडेड एंगल पता होना चाहिए। तो ये तो सब तो कुछ दिया ही नहीं हुआ है। तो हम पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे, दैट इज हम देखेंगे कि क्या इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग डबल ए से प्रूव कर सकते हैं कि नहीं। तो अब एक बात बताओ मुझे स्टूडेंट, अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं ट्रायंगल एईपी में, तो ट्रायंगल एईपी में ये ई वाला एंगल 90 डिग्री है। सी इट इज एल्टीट्यूड ना, तो ये वाला 90 है तो ये भी तो 90 ही होगा। तो ये वाला एंगल एईपी इज 90 एंड इन दिस ट्रायंगल सीडीपी एंगल डी इज 90। तो एक एंगल तो दोनों में 90 यानी कि इक्वल हो गया। अब एक और एंगल बचा। तो एक बात बताओ मुझे, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल एपीई और एंगल सीपीडी क्या दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है? हाँ, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल और एंगल डी के इक्वल। तो जब दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो यानी कि इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग डबल ए से प्रूव कर सकते हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे, इस ट्रायंगल का एंगल एईपी, पूरा नाम लिखिएगा, केवल एंगल ई मत लिखिएगा क्योंकि एंगल ई इधर भी है, तो जो नाम हो वो लिखिएगा। तो इस एंगल का नाम एंगल एईपी है और इस एंगल का नाम एंगल सीडीपी है, जो कि कितने हैं
जो ये कितने हैं 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री है क्योंकि एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। सिमिलरली इस ट्रायंगल का एंगल एपीई इस ट्रायंगल के एंगल सीपीडी के बराबर होगा बिकॉज दीज टू angles are vertically opposite angles, so vertically opposite angle, so it is also a, so by double a criteria triangle AEP is similar to triangle CDP. first part is proved, it is proved, ठीक है, बहुत सिंपल था, देखा, डबल ए बहुत सिंपल होता है। नाउ सेकेंड पार्ट, what is the second part student? Second part is triangle ABD. We have to prove triangle ABD is similar to triangle CBE, ठीक है, CBE। तो फिर से ऐसे ही स्टार्ट करेंगे इसका प्रूफ, ठीक है, जिन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है उनको पहले लिख लेंगे, दैट इज ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, ठीक है। नाउ व्हाट इज ट्रायंगल ABD? एबीडी कौन सा है स्टूडेंट? ABD, ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, ABD एंड CBE। अब इन दोनों को मुझे सिमिलर प्रूव करना है, तो देखो उन दोनों ट्रायंगल में क्या कौन कौन से एंगल इक्वल हो सकते हैं। तो देखो ABD में भी B वाला पॉइंट आ रहा है, ABD में भी एंगल B आ रहा है, और यहाँ पे एंगल B अकेले है तो एंगल B भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ABD में एंगल B और CBE में भी एंगल B, दोनों ट्रायंगल में एंगल B कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं ना एंगल B इज इक्वल टू एंगल B। आप चाहो तो पूरा नाम लिख सकते हो, और अगर नाम नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल B अकेले था। यहाँ पे क्यों हमने पूरा नाम लिखा था? क्योंकि एंगल A इधर भी था, इसलिए हमने नाम लिखा था AEP, लेकिन यहाँ पे तो एंगल B उधर है ही नहीं, तो हमने उसको एंगल B भी लिख सकते हैं। तो एंगल B इक्वल टू एंगल B, कॉमन एंगल। और ध्यान दो स्टूडेंट, ABD में एंगल D जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल D का नाम क्या होगा? एंगल D का नाम होगा एंगल ADB। इसी तरह ट्रायंगल CBE में एंगल E 90 डिग्री है, तो इसका नाम क्या होगा? CEB, और ये दोनों क्या है? 90 डिग्री। तो अगेन दोनों ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए, सो इट इज ऑल्सो A एंड इट इज ऑल्सो A, सो बाय डबल A triangle ABD is similar to triangle CBE. It is also proved. केवल कोई दो एंगल देखना है आपको, क्या इक्वल हो पा रहा है कि नहीं। एंगल भी दोनों में कॉमन था, और इस ABD में एंगल D और CEB में E 90 डिग्री था, तो किसी ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल हो जाए तो वो डबल ए से क्या हो जाता है? सिमिलर, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट, what is the third part student? Third part is triangle AEP. AEP is similar to triangle ADB, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही स्टार्ट करेंगे हम लोग, पहले दोनों ट्रायंगल का नाम लिखेंगे जिनको सिमिलर प्रूव करना है। तो ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB, ठीक है। नाउ AEP कौन सा ट्रायंगल है स्टूडेंट? AEP ये छोटा वाला ट्रायंगल है, एंड ADB ये वाला ट्रायंगल है, ADB। तो इन दोनों ट्रायंगल को देखो आप, AEP और ADB दोनों में एंगल A कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं एंगल PAE इज इक्वल टू एंगल BAD, लिख सकते हैं। PAE और BAD दोनों में, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल A कॉमन है, क्योंकि देखो APE में भी ये वाला एंगल है, और ADB में भी ये वाला एंगल है, तो कॉमन एंगल है ये, तो दिस इज कॉमन एंगल, ठीक है। आप फिगर को देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, एक एंगल तो मिल गया। अब देखो ध्यान से AEP में E वाला एंगल 90 है, AEP में E वाला एंगल 90 है, और ADB में D वाला एंगल 90 है, तो यानी कि इसमें एंगल AEP will also equal to angle ADB, and these two angle are what? 90 degree. So again it is A and it is A. By double A, triangle AEP will be similar to triangle ADB. Now it is also proved. So like this student, you can solve these type of questions.
जब आपको कोई क्राइटेरिया ना लिखे तो सबसे पहले आप डबल ए के बारे में सोचा करो कि क्या अगर दोनों ट्रायंगल के इक्वल है कि नहीं। और जब कुछ नहीं दिया होता है तो डबल ए से पक्का होता है, क्योंकि साइड के बारे में दिया नहीं है, ना साइड्स के रेशियो के बारे में बोला है। तो इसका मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज डबल ए, कि चेक करना कि क्या ये डबल ए से सिमिलर हो पा रहा है। और डबल ए से सिमिलर करने के लिए आपको कोई भी दो एंगल इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो आप देखो फिगर को और देखो कौन कौन से एंगल दोनों ट्रायंगल में इक्वल हैं। अगर दो एंगल इक्वल हो जाए तो बाई डबल ए से वो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो फोर्थ पार्ट आप स्टूडेंट ऐसे ही कर सकते हो। फोर्थ पार्ट में क्या करना है, पीडीसी एंड बीईसी, ठीक है। तो दोनों में सी वाला पॉइंट कॉमन हो जाएगा और पीडीसी में एंगल डी और बीईसी में एंगल ई 90 डिग्री है। तो अगेन डबल ए से फोर्थ पार्ट भी आपका सिमिलर प्रूव हो जाएगा। सो लाइक दैट यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट। So please note down it, and fourth part you can do by yourself, okay? So after that I am going to solve question number 8. Please note down it. Now student, question number 8 of exercise 6.3, okay? We are discussing exercise 6.3 student. I have mentioned here exercise 6.3. ठीक है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्सरसाइज 6.3. सो सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 8. इज द पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE intersects CD at F, show that triangle ABE is similar to triangle CFB. So first, what is saying, is the point on side AD produced of a parallelogram ABCD. So first we need to draw parallelogram ABCD. So suppose it is a parallelogram A B C D, ठीक है। It is a parallelogram ABCD and E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। मतलब कि एक पैरेललोग्राम ABCD है और इसकी एक साइड AD को प्रोड्यूस किया गया है कहां तक, E तक। तो मतलब कि मैं इसको प्रोड्यूस कर दे रहा हूं कहां तक, E तक। और क्या कर रहा है, BE इंटरसेक्ट CD एट F। BE कैसे मिलेगा स्टूडेंट, अगर हम B को E से ज्वाइन कर दे ऐसे, तो ऐसे कुछ होगा। AD को प्रोड्यूस किया गया E तक और BE को जब ज्वाइन किया तो वो CD को F पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दिस विल बी द डायग्राम। सो वी नीड टू प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB, ठीक है, CFB। ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम था, E एक पॉइंट था कहां पर, उस पैरेललोग्राम की साइड AD को प्रोड्यूस किया गया था, आगे प्रोड्यूस का मतलब आगे बढ़ाया गया था, तो उसी पर एक पॉइंट E था। और BE कैसे मिलेगा, जब हम लोग B को E से ज्वाइन करेंगे तो वो BE CD को F पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें प्रूव करना है ABE कौन सा है स्टूडेंट, ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग क्या इसमें कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल को हमें क्या प्रूव करना है, सिमिलर। तो पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है। तो गिवन दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जिन दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है उनको लिख लेते हैं। तो ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB। सो ABE देखो स्टूडेंट, ABE एंड CFB, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या क्या हो सकता है, कैसे इसको हम लोग सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो ध्यान दो, ABE और CFB में एक एंगल तो डेफिनेटली कॉमन होगा, दैट इज एंड इसका एंगल A और इसका एंगल C, ठीक है। देखो ABE में ही एंगल A आएगा और CFB में ही एंगल C आएगा। तो एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल C। क्यों, बिकॉज इन पैरेललोग्राम opposite angles are equal, opposite angles
आर इक्वल, ठीक है। और ए और सी अपोजिट एंगल है तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो एक एंगल तो हो गया। अब दूसरा एंगल देखते हैं हम लोग, दूसरा वाला एंगल। अच्छा, ए बी ई कौन सा है स्टूडेंट? ए बी ई और सी एफ बी। अब दूसरा एंगल देखना है तो ध्यान दो, ए बी ई में एंगल ई, ये वाला एंगल, और सी एफ बी में एंगल बी, ये वाला एंगल, क्या इक्वल नहीं होगा? देखो ये वाला एंगल तो इसके बराबर था, एंगल ए वॉज इक्वल टू एंगल सी बिकॉज इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब दूसरा एंगल देखते हैं तो ए ई बी, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। ए ई बी में एंगल ई आ रहा है और सी एफ बी में एंगल बी आ रहा है, ठीक है। और बी और ई इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि अगर एडी बीसी के पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो अगर हम लोग डी को ई तक बढ़ा दे तो ए भी क्या होगा? बीसी के पैरेलल। और अगर ए और बीसी पैरेलल है एंड बी इज द ट्रांसवर्सल, so these two angle will be equal by the property of alternate interior angle. So in triangle AB I can mention angle AEB is equal to angle CBF and in that triangle AEB, because AE parallel BC and BE is transversal and alternate interior angle. By alternate interior angle property, angle AEB will be equal to angle CBF. So see, angle A was equal to angle C and angle AEB is equal to angle CBF. So by angle criteria, triangle ABE is similar to triangle CFB. हो गया, प्रूव्ड। ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए था बिकॉज फिगर वॉज नॉट गिवन, ठीक है, फिगर नहीं गिवन था। और आपको इसमें एंगल देखो, पहले जो ट्रायंगल को आपको सिंगल प्रूव करना है उसको ध्यान से देखो। ट्रायंगल था हमारा AEB और CFB, तो मैंने उसको ध्यान से देखा और फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि AEB में एंगल A और CFB में एंगल C क्या है? इक्वल होंगे, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम था और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। उसके बाद मुझे एक और एंगल चाहिए था डबल ए से प्रूव करने के लिए, तो मैंने देखा कि AEB पहले ट्रायंगल में और CBF दूसरे ट्रायंगल में इक्वल हो सकते हैं। किस प्रॉपर्टी से? क्योंकि AE पैरेलल BC है और B इज अ ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो इस प्रॉपर्टी से एंगल AEB एंड एंगल CBF विल बी इक्वल, सो दिस टू विल बी इक्वल। और जैसे ही हम लोगों ने दो ट्रायंगल के दो एंगल को इक्वल प्रूव कर दिया, सो बाय डबल ए प्रॉपर्टी से वो दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर। तो डबल ए बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत इजी प्रॉपर्टी है, बस दो एंगल प्रूव करना होता है और ऑटोमेटिकली दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? सिमिलर। तो पहले जिस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना हो उसको टू प्रूव में लिख लो, उसके बाद गिवन जो है उससे कुछ डेटा एनालाइज कर लो, उसके बाद जिसको भी सिमिलर प्रूव करना है उनको ऐसे लिखो, पहले ही सिमिलर मत लिख दो, क्योंकि पहले हमको दिखाना पड़ेगा ना कि सिमिलर है या नहीं। तो जैसे कॉन्ग्रुएंसी में करते थे, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता था, तो पहले आप दोनों ट्रायंगल का नाम लिखते थे, ट्रायंगल दिस एंड ट्रायंगल दिस। तो इसी तरह आपको इसमें भी लिखना है। तो जिस भी क्राइटेरिया से प्रूव करना होगा वो क्राइटेरिया मेंशन करो। और हमने इसको डबल ए से प्रूव किया तो दोनों एंगल पहले इक्वल दिखाया है, साथ में रीजन भी लिखा है कि किस प्रॉपर्टी से इक्वल हो रहे हैं ये। तो बाय डबल ए से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। सो लाइक दिस वी हैव सॉल्व्ड, by this method we have solved question number 8. So please note down it. Now student, question number 9 of exercise 6.3. What is the question number 9? In figure I have drawn already. So in figure ABC and AMP are two right triangles. Okay, ABC and AMC are two right triangle. It is point P, student. It is P. Okay. In figure, ABC and AMP are two right angle triangles. Right angle at B and M respectively. So prove that triangle ABC is similar to triangle AMP. And second,
CA upon PA is equal to BC upon MP. Okay, so see what is the first part. In first part, triangle ABC will be similar to triangle AMP. We need to prove triangle ABC is similar to triangle AMP. So first we will observe these two triangle. क्वेश्चन ये कह रहा है कि ABC और AMP दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं. ABC पॉइंट B पर राइट एंगल है और AMP पॉइंट M पर राइट एंगल है. तो पहले पार्ट में प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP. सो जिसको भी सिमिलर प्रूव करना है हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल का नेम लिखेंगे. तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP. ठीक है, अब ध्यान दो. अब इसको भी किस प्रॉपर्टी से प्रूव करेंगे. तो पहले आप डबल एज से जाओ कि डबल एज से क्या सिमिलर हो पाएगा. तो देखो ABC और AMP इन दीज टू ट्रायंगल एंगल A इज कॉमन. एंगल A इज कॉमन इन दीज टू ट्रायंगल. ट्रायंगल ABC में भी एंगल A है और ट्रायंगल AMP में भी एंगल A है. सो एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल A. ठीक है, कॉमन एंगल. ठीक है, एक एंगल तो हो गया इक्वल. अब दूसरा एंगल बताइए आप. नाउ ABC में एंगल B और AMP में एंगल M 90 डिग्री है. तो मतलब कि ये दो एंगल भी इक्वल होंगे. तो इन दिस ट्रायंगल ABC एंगल ABC एंड इन दिस ट्रायंगल एंगल AMP आर व्हाट 90 डिग्री. ठीक है, क्यों मैंने पूरा नाम लिखा है यहाँ पे, क्यों नहीं मैंने एंगल B और एंगल M लिखा है, क्योंकि एंगल B इधर भी है इसलिए मैंने पूरा नाम लिखा है और एंगल M भी उधर है इसलिए मैंने पूरा नाम लिखा है. और एंगल ABC and angle AMP both are 90 degrees, so they will be equal. So they will be equal, and angle A is already equal. So by double A property, by double A criteria, triangle ABC is similar to triangle AMP. Proved. Very simple question. This type of बहुत सिंपल होते हैं ऐसे क्वेश्चंस. ठीक है, बस लगता है देखने में, लेकिन बस आपको दो एंगल को ही देखना है, क्योंकि जनरली बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन में यही डबल ए यूज होता है. किसी में SAS या ट्रिपल S यूज होगा. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट डन. नाउ सेकेंड पार्ट. व्हाट इज द सेकेंड पार्ट. CA अपॉन PA. CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है. CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP. ये हमें प्रूव करना है. तो हाउ वी विल प्रूव इट. अब देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे. अभी हमने शो किया है ना, वी हैव ऑलरेडी शोन दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP. हमने ये अभी प्रूव किया है. और अगर दो ट्रायंगल स्टूडेंट सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल. इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर सो द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. तो करस्पॉन्डिंग साइड कैसे लेंगे, अगर इसका AB लेंगे तो इसका क्या लेना पड़ेगा AM. इसका अगर BC लेंगे तो इसका क्या लेना पड़ेगा MP. और इसका अगर AC लेंगे तो इसका लेना पड़ेगा AP. ठीक है, if two triangles are similar then their corresponding angles are also equal and the ratio of the corresponding sides are equal. तो रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड लिखना कैसे है, तो आप ट्रायंगल से लिख सकते हो. अगर इसका AB लोगे तो इसका AM, तो AB बाई AM. इसका BC लोगे तो इसका MP, BC बाई MP. और इसका AC लोगे तो इसका क्या लोगे, AP, दैट इज AC बाई AP. तो ये होगा ऑलरेडी. अगर सिमिलर है तो ये होगा ही, क्योंकि ट्रायंगल के सिमिलरिटी की दो कंडीशन थी. अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है. तो हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC बाई MP. मतलब कि हमें केवल दो चाहिए, दो साइड्स के रेशियो इक्वल दिखाना है. लेकिन तो तीन यहां पर है हम लोग, तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम लोग किन दो को लें. अब देखो कहीं भी क्वेश्चन में जो प्रूव करना है उसमें AB बाई AM नहीं आया है, तो मतलब हमको ये वाला नहीं लेना है, ये वाली साइड का रेशियो नहीं लेना है. हमको कौन साइड का रेशियो लेना है, ये वाला. होगा तो तीनों ही, लेकिन क्वेश्चन तो हम लोग वैसे चलेंगे ना जो हमें प्रूव करना है. तो प्रूव में केवल यही दो साइड्स, केवल दो साइड्स आई है और उन दो साइड्स में ये वाले रेशियो नहीं आ रहा है. तो हम लोग इसमें से अगर A इक्वल टू B इक्वल टू C है स्टूडेंट, तो हम लोग B इक्वल टू C भी ले सकते हैं, A इक्वल टू B भी ले सकते हैं, या A इक्वल टू C भी ले सकते हैं. एट अ टाइम दो को लेना है. तो
हमको केवल दो रेशियो को एट अ टाइम लेना है और ये चूज करना है कि किन दो को लेंगे, किन दो साइड्स के रेशियो को साथ में लेंगे। तो इन दोनों को नहीं लेंगे क्योंकि प्रूफ में ए बी अपॉन ए एम नहीं चाहिए, तो हम बच कौन सा गया, ये दोनों, तो ये दोनों लेंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं ना कि बी सी बाई एम पी इज इक्वल टू ए सी बाई ए पी ले सकते हैं, या इसको सीधा लिखो अगर आप तो ए सी बाई एम ए पी इज इक्वल टू बी सी बाई एम पी। ठीक है, अच्छा अब देखो प्रूव हो गया ऑलरेडी, ए सी बाई एम ए पी इज इक्वल टू बी सी बाई एम पी। देखो ए सी को मैं सी ए भी तो लिख सकता हूं, ए सी को मैं क्या लिख दिया, सी ए, और ए पी को क्या लिख दिया, पी ए। तो सी ए बाई पी ए इज इक्वल टू बी सी बाई एम पी। बस प्रूव तो ये यहीं पे हो गया था, प्रूव वो यहीं पे हो गया था, बस जैसा क्वेश्चन प्रूव करने होगा है उस सीक्वेंस में लिख दो। यहां पे सी ए लिखा था और हमारा ए सी आया था, तो सी ए को हम लोग ए सी को हम लोग सी ए लिख सकते हैं, इसी तरह एपी को हम लोग पी ए लिख सकते हैं, तो प्रूव हो गया। तो इतना याद रखो कि अगर आपने दो ट्रायंगल को सिंगल प्रूव कर दिया है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखते कैसे हैं, ट्रायंगल को देखकर। बस ट्रायंगल को आप देखते जाओ, और साइड लिखने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए, मतलब कि किसी भी साइड में 2 एंड पॉइंट होते हैं। तो अगर इसका ए बी लोगे तो इसका ए एम, इसका बीसी लोगे तो इसका एपी, इसका बीसी लोगे तो इसका एमपी, और इसका एसी लोगे तो इसका एपी। मतलब कि जो पैटर्न एक ट्रायंगल में फॉलो करोगे दूसरा में भी वही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। ए बी लिया था इसमें पहला और दूसरा, तो इसमें भी कौन सा लिया, पहला दूसरा, उन दोनों का रेशियो। इसमें मैंने बीसी लिया था दूसरा तीसरा, तो इसमें भी लिया मैंने एमपी दूसरा तीसरा, तो बीसी बाई एमपी का रेशियो। सिमिलरली इसमें मैंने ए और सी लिया था, तो इसमें भी मैंने ए और पी लिया था, तो एसी बाई एपी। और इन तीनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल, क्योंकि ट्रायंगल क्या थे, सिमिलर, क्योंकि सिमिलर हमने पहले पार्ट में प्रूव कर लिया था। ठीक है, सो नोट डाउन इट। आफ्टर दिस वी हैव सॉल्व, मतलब कि अब तक हम लोगों ने 9th क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो प्लीज से नोट डाउन करिए। So students, up to question number 9 we had discussed. So what you will do, question number 10, 11, 12, this is your homework. No, up to question number 13 you can easily solve, student. Up to question number 13, from 10 to question number 13 you have to solve by yourself. Okay, okay, अगर आप खुद से नहीं solve करोगे तो समझ में नहीं आएगा. Okay, so from question number 10 to question number 13 is your homework. In the next part of the video, student, I will tell you from question number 14 to question number 16. Okay, अगर possible हुआ तो इन 4 क्वेश्चन में से भी, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक मैंने होमवर्क दिया है, तो अगर पॉसिबल हुआ, टाइम बचा, तो मैं इन 4 में से भी कोई 1-2 क्वेश्चन बता दूंगा। अदरवाइज वी विल डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 16 एंड देन वी विल फिनिश दिस एक्सरसाइज। ओके, सो वट एवर थिंग्स I am giving to you as a homework, please solve by yourself. प्रीवियस पार्ट्स को देखिए और सारे सॉल्व करिए अच्छे से। और अगर ये कोई पार्ट समझ में ना आए तो इसको 1-2 बार देखो, रिवाइंड करके देखो, समझ में आएगा। ठीक है, नई चीजें जब पहली बार कोई बार हम लोग पढ़ते हैं, कोई चीज नहीं, कोई भी चीज जब पढ़ते हैं पहली बार तो थोड़ा डिफिकल्टी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो समझ में नहीं आता है, वो समझ में आता है जब आप प्रैक्टिस करते हो। तो प्रैक्टिस करना है, बिना प्रैक्टिस के समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो you know now what question you have to do in the homework. So from question number 10 to 13 you have to attempt by yourself, and in the next part we will discuss from question number 14 to question number 16. Okay, so I hope you have understood whatever things I taught you today. So remaining thing we will discuss in the next class. So till then students, have a nice day, take care, thank you.